So, good morning to one and all. Good morning, sir. Good morning, sir. I think most of the students have joined this session. Uh, so, we should start. Today, we are going to learn about the bacterial growth. Okay. So, this was a short topic that we were missing it. We have already missed this. So, I would like to cover this topic: the microbial growth, how the microbe growth takes place. Okay. So, see, our objective is to understand how this microbial growth occurs, and we will see according to our exam scenarios what may be asked in the examination. So in the continuity with this subject, we all know that bacterial growth, when we say about the bacterial growth, what does it mean? It means division, isn't it? Then there, bacterial growth means what? Means they divide they divide from one generation to next generation. So generally this division occurs in the bacteria with the help of binary fission, isn't it? So how they this bacteria growth and they proliferate. हम लोग देखते हैं कि यदि किसी भी ग्रोथ के लिए, जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, तो कोई भी स्पीसीज हो, वो अपने लाइफ टाइम में कुछ स्टेजेस में जाता है. जैसे सपोज दे मस्ट हैव टू अंडरगो अ सर्टेन लाइफ स्टेज where they have to measure enough to doubling themselves. ठीक है. अब क्या है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, लाइकवाइज अदर एनिमल्स, तो वो कैसे ग्रो करते हैं, यानी ग्रो करते हैं मतलब उनका जो साइज वेरिएशन होगा, कैसे वो स्लोली स्लोली इंक्रीज करेंगे, कैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है. तो मेटाबॉलिक बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म में हम लोग देखेंगे कि हाउ दिस मेटाबॉलिक एक्टिविटी टेक्स प्लेस. But after this metabolism, ultimately a species having the objective of to, what is their objective, is to proliferate, to give, to divide themselves into next progeny. Okay. तो यहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिया में कैसे होते हैं? सो एक्चुअली बैक्टीरिया में जो फर्स्ट प्रोसेस होता है, दैट इज द बाइनरी फिजन. एज वी ऑल नो दैट ऑल द प्रोकैरियोट्स दे डिवाइड विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन. So what is binary fission? So binary fission is a type of asexual reproduction in single-celled organisms. Means a single-celled organism, how they divide is, this is depicted here in a very in a diagrammatic approach. So you see that still some of the students are joining. Okay. So you see that once a bacterium, we can assume here that this is a rod cell bacteria, isn't it? So first, the thickening of cell wall takes place. Then after that, the division of this chromosome occurs, and ultimately, these cell wall, cell membrane, and these nucleus region or nucleoid region, what we say, because they lack nuclear membrane. So the region of this bacteria is called nucleoid, isn't it? So slowly they elongates themselves. Then these nucleotide divides after a cell wall formation or cytokinesis occurs, and membrane begin to transfer septum. So they form a septa. Septa means wall. Okay. So they form a septa. Then they divide into two. So here you may see that daughter cells are separating here. So basically, if we see the mathematical progression or the progression on which a bacterium divides is generally one bacterium divides into two, isn't it? So each cell divides into two equal sized offsprings, and they ensure that their chromosomal division takes place in a equal manner. Okay. So if we see there are certain doubling time, means an Escherichia coli, how much time generally it takes to double themselves. So generally an Escherichia coli, they take
20 minutes. Escherichia coli is a coliform bacteria. They found in the colon region of the most of the organism, like mammals, fishes, or whatever. Then Mycobacterium tuberculosis, this is 18 hours. Mycobacterium leprae, this is 14 days. So you may see that the doubling time of each and every bacteria is differs because their metabolic capability, each and every bacteria having a different cellular constituent, different cell wall constituent, different metabolic activity. There are certain autotrophs, there are certain organotrophs, chemotrophs, heterotrophs, or whatever. So you see, so what we say is the logarithmic or exponential growth. Why? Because one bacterium, when it divides, it gives a two progeny, isn't it? Then two, when these two will divide themselves, they will give a four bacterium, isn't it? These two bacterium, when they divide, they will give four. Then ultimately, these four bacterium, when divide, each and every cell will give rise to one bacteria. ठीक है ना? तो एक बैक्टीरिया पर्टिकुलर दो बैक्टीरिया का दोगे, तो यहाँ पे क्या होगा? एक से दो हुए, दो से चार हुए, और चार से फर्दर 8 हुए. ठीक है? तो इस तरीके से ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, लॉगरिथमिक फेज ऑफ, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉगरिथमिक ग्रोथ. ठीक है, या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. so the population of bacterial cells when divide at a constant rate so that the total number of cells doubles with each division. And so why this cycle or this phase of the bacterium growth is called exponential growth phase or logarithmic phase. Clear? Any doubt? So you see how they divide, how this exponential growth of a bacterium takes place, that number of cells. If you see the number of cells here, it is 1, it divides and it gives rise to 2 individuals. Okay, then further they divides into 4 and further they multiplied into several in logarithmic phase and it gives a number of cells. So you see what is the difference between the number of cells, the number of generation and the exponential value. ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स आप देखते हैं कि यहाँ पे एक बैक्टीरियम है, तो ये जो एक बैक्टीरियम से जो दो बैक्टीरिया बना आफ्टर बाइनरी फ्यूजन या 2 से 4 बना, तो यहाँ पे हम यदि फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं तो इसको हम बोल सकते हैं एफ नॉट जनरेशन, बोल सकते हैं ना, यानी फर्टिलिटी नॉट रीजन, इजंट इट? तो ये जनरेशन नहीं है. एक बैक्टीरिया जब दो सेल में डिवाइड हो रहा है तो नंबर ऑफ जनरेशन क्या हो, यानी बैक्टीरिया एक जनरेशन में कितने सेल्स में कन्वर्ट होंगे? 2. सेकेंड जनरेशन में कितने होंगे? 4. तो इसी तरीके से क्या होता है, आप देखते जाइए कि नंबर ऑफ जनरेशन, जब नंबर ऑफ जनरेशन आपका बढ़ता चला जा रहा है तो बैक्टीरियम डिवीजन भी इस तरीके से लॉगरिथमिक फेज में ये इंक्रीज हो रहा है, डबलिंग हो रहा है. सो सिंपली जब ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू हम लोग निकालने के लिए बोलेंगे, यदि कोई आपको बोले कि 5th जनरेशन या 7th जनरेशन में बैक्टीरिया का नंबर कितना होगा, so it will be 2 to the power 7. You see simply here this is the 2 per power 1, it gives 2 number of cells, number of generation 1. So number of generation will be here can be written as a power factor, isn't it? Okay, so 2 to power 1 it will be number of cells will be 2. तो यदि आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि the number of cells after 10th generation, so what will be the exponential value of bacteria? Can anyone say? 2 to power 10. 2 के पावर 10. 2 पर पावर 10. वेरी गुड. ठीक है, तो यानी 2 पर पावर 10 हो जाएगा, आप इतना लिख सकते हो, वो दैट इज करेक्ट. ओके, अदरवाइज इफ यू कैन कैलकुलेट इट इज ओके, और यदि आप नहीं भी करते हो 2 पर पावर 10 लिख देते हो तो भी आपका आंसर सही होता है. तो मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. सो बेसिकली व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ. ठीक है, यानी कि कौन कौन से ऐसे स्टेज होते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ में. देखिए, कोई भी स्पीसीज हो वर्ल्ड का, चाहे ह्यूमंस हो या फिर कोई भी वर्टिब्रेट हो, इनवर्टिब्रेट हो, दे हैव टू गो थ्रू अ डिफरेंट फेजेस. जैसे हम लोग के केस में हम लोग बोलते हैं व्हाट, चाइल्डहुड स्टेज, then young stage, adult stage, and ultimately the old stage, isn't it? Likewise,
एनी बैक्टीरियम गोज 4 फेजेस। क्या ये 4 फेजेस कौन कौन से हैं? एक है लैग फेज, एक है लॉग फेज, तीसरा स्टेशनरी और स्टेशनरी फेज। ठीक है, और चौथा है डेथ फेज। तो बेसिकली यदि हम इसको कंपैरिजन करें खुद से तो ज्यादा समझ में आसानी होगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है लैग फेज, जैसे हम लोगों का कोई बचपना, जब हम लोग बचपन में होते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी होती है, ठीक है, जो फिजिकल ग्रोथ होता है, दिस इज अ वेरी स्लो ग्रोथ, इजंट इट? होता है या नहीं होता? एक पर्टिकुलर Yes, sir. स्टेज अटेन होने के बाद आप देखते होंगे कि रैपिड शूट आउट होता है हमारे हाइट में, जो ग्रोथ होता है बहुत रैपिडली होता है, और अल्टीमेटली आफ्टर Sir. गेनिंग दैट एडल्ट स्टेज वी ultimately the growth stops. Then our body try to maintain whatever growth they got, or after getting this maturity of any person, then there is a fourth stage is adult, when they just survive themselves, they just try. So simply here the number of here, if we say about the bacterial growth, it means the number of population कैसे बढ़ता है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे बैक्टीरिया को कोई भी जब कल्चर कर रहे होते हैं या बैक्टीरिया किसी भी होस्ट में जाएगा तो सबसे पहले क्या होता है लैग फेज। यानी लैग फेज क्या है? लैग फेज में कोई भी बैक्टीरिया वो न्यूट्रिएंट से एडप्ट करता है, ठीक है, बिकॉज इट बिकम्स इट इज दिस इज द न्यू वर्ल्ड व्हेन बैक्टीरिया अराइव्स, ठीक है। सो दे ट्राई टू एडप्ट, दे ट्राई टू गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर ओन, तो सो इट टेक्स टाइम। इवन यदि इन विट्रो में, इन विट्रो कहने का मतलब जब हम कोई भी बैक्टीरिया कल्चर बाहर में करते हैं, इन वाइवो कहने का मतलब विद इन ऑर्गेनिज्म यदि हम कोई बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कोई भी बैक्टीरिया, जब हम मीडिया हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, आप लोगों को मैंने मीडिया देखा है, तो उस मीडिया में जब हम बैक्टीरिया ग्रो करते हैं तो दे ट्राई टू एडप्ट विद दिस इन विट्रो एनवायरमेंट्स, एंड दे ट्राई आफ्टर सम टाइम when they adapt with this condition they absorb nutrients, और जब न्यूट्रिएंट्स मिलेगा तो फिर क्या होगा, ये बैक्टीरियम ग्रो करेंगे, और जब ग्रो करेंगे तो फिर क्या होगा, यहीं पे ग्रो कहने का मतलब है कि साइज भी बड़ा होगा और साथ साथ क्या होगा, उसके सेल डिवीजन भी होंगे, isn't it? So this is the log phase. Stationary phase when growth equals with the death, कहने का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन सर्टेन पॉपुलेशन द डिवीजन टेक्स प्लेस, बट एट द सेम टाइम फ्यू ऑफ द पॉपुलेशन दे डाई ऑफ, ठीक है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट है वो तो लिमिट अमाउंट में है। यदि हम इस न्यूट्रिएंट को चेंज करते रहें, एडिक्वेट अमाउंट में देते रहें, पॉपुलेशन के हिसाब से यदि मीडिया को भी बढ़ाते जाएं, इंक्रीज करते जाएं, तो द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज भी क्या होगा, ये लार्जर होगा। मेरी पॉइंट को समझ रहे हो? सो बेसिकली lag phase when they try to adapt the environments, they try to gain the nutrients. Log phase when the bacterial metabolism actively participates, they divide themselves. Stationary phase when the number of bacterium equals with the declining phase population of a bacteria. Okay, then death when nutrients in already consumed, यानी कि total nutrient consumed हो जाने के बाद क्या होगा, बैक्टीरिया डिप्राइव्ड होंगे न्यूट्रिएंट से, और जब न्यूट्रिएंट से डिप्राइव होंगे तो अल्टीमेटली दैट विल बी लीड टू डेथ। यू सी हियर वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। सो बेसिकली दिस इज अ वायबल ऑर्गेनिजम्स पर एमएल। सपोज हमने ब्रॉथ कल्चर किया, ब्रॉथ क्या है, एक मीडिया है, लिक्विड मीडिया है। यहाँ पे देखिए कि log 10 वैल्यू हम लोग यहाँ पे जब ले रहे हैं, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, कोई भी बैक्टीरियम वो क्या करता है, दे ट्राई टू एडप्ट द न्यूट्रिएंट्स। वंस ये बैक्टीरिया स्लोली इसमें क्या होगा, दे ट्राई टू एडप्ट, और सिंपली एक स्टेज आने के बाद बैक्टीरिया वो डिवाइड करना शुरू कर देता है, ठीक है, और डिवाइड करना शुरू करेगा तो वो क्या होगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, और इस तरीके से इंक्रीज करता जाएगा। बट एट सर्टेन at a certain point of time
when these nutrients becomes limited, then the number of population, this is likewise similar. क्योंकि क्या होगा, जो यंग बैक्टीरिया होंगे उनमें एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो होगी, उनकी जो मेटाबॉलिक कैपेसिटी होगी वो हाईएस्ट लेवल पे होगी, तो यंग विल बी सर्वाइव, द ओल्डर विल बी डिप्राइव्ड ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, उनमें मोटिलिटी लेस होगी. So simply, slowly, the number of population here, the half of the population they will decline, and at the reciprocate in that reciprocation, the half of the population will be taking division part. Okay, so half of the bacterium they will divide into two, and with the same reciprocation, the half of the population of the bacteria they will die off, because of the competitive environment created by their own population. ठीक है, ultimately it will lead to at certain point of time when these nutrients will be deprived of, these bacteria will get die off. Okay, ये एक theoretical point है. आप देखो कि यदि हम constant level पे इसको maintain करते रहे, इसको मीडिया को, तो हम एक स्टेज पे आने के बाद एक स्टेशनरी फेज अटेन कर सकते हैं, बिकॉज उसमें से जो कुछ बैक्टीरिया होंगे, यदि एडिक्वेट अमाउंट में, एक लिमिट अमाउंट में हम मीडिया ऐड कर रहे हैं 1 ml, यानी यदि एक एस्चेरिचिया कोलाई का डबलिंग टाइम क्या था, 20 मिनट. वेरी गुड. अभी मैं वही पूछ रहा था कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स दे आर कंसंट्रेटेड ऑन दिस स्लाइड्स. So 20 minutes means a single bacterium they divides within 20 minutes, Escherichia coli, isn't it? Likewise in Mycobacterium tuberculosis, you see the number of days it differs. तो ये होता क्या है कि यदि हम 20 मिनट्स पे, 20 मिनट्स के बाद ये एक्सपोनेंशियल फेज में रीच कर जाते हैं, डबलिंग टाइम. ठीक है, तो हर एक 20 मिनट्स के बाद यदि हम इनमें मीडिया ऐड करते रह जाए, दिस इज अ थ्योरेटिकल पॉइंट. ठीक है, अदर फैक्टर्स आल्सो टेक्स पार्टिसिपेट्स फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ. वो क्या है, द पीएच, द ऑर्गेनिक एसिड दैट इज रिलीज्ड बाय दिस बैक्टीरियम. ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, ये स्टेशनरी फेज मेंटेन किया जा सकता है. और यहां जो ऑप्टिकल डेंसिटी आप देख रहे हो, ऑप्टिकल डेंसिटी कहने का क्या मतलब है कि जनरली हम लोग बैक्टीरियम काउंट करते हैं किसी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में. आप लोगों ने देखा भी है कि जो क्यूवेट्स होते हैं, क्यूवेट्स कहने का मतलब एक ग्लास का छोटा सा क्यूवेट बना होता है जिसमें हम बैक्टीरियल पॉपुलेशन कैलकुलेट करते हैं. तो कैलकुलेट कैसे करते हैं, सबसे पहले हमारे पास कोई डिस्टिल वाटर होगा, और डिस्टिल वाटर के जो उसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी होगी उसमें रीड कर लेंगे. वो बिल्कुल स्टेराइल होगा, स्टेरलाइज डिस्टिल वाटर है और उसमें कोई भी कॉन्टेमिनेटेड पार्टिकल नहीं है. ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, एक आइडल रीडिंग हो गई. नाउ दूसरा जो मीडिया है, अब उस मीडिया का हम ऑप्टिकल डेंसिटी हम स्टडी कर लिए. ठीक है, क्लीन मीडिया दैट इज नॉट कॉन्टेमिनेटेड विथ एनी अदर पार्टिकुलेट मैटर्स, स्टेरलाइज्ड ब्रॉथ. ठीक है, स्टेरलाइज्ड जो ब्रॉथ होता है उसका हम ऑप्टिकल डेंसिटी रीड कर लिए. अब जब हम इनोकुलेशन उसमें डालेंगे तो जैसे जैसे बैक्टीरियम डिवाइड करेगी तो इसका ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगा, slowly you see the optical density 0.25 या 0.5 या 0.75 या 1 जो होता है, ये कन्वर्शन फैक्टर. आप लोग लैम्बर्ट्स एंड बियर्ड्स लॉ पढ़ते होंगे. सो लाइट जब क्रॉस करेगी इस मीडिया के थ्रू, यदि नंबर ऑफ पॉपुलेशन विल बी मोर देन रिफ्रैक्शन, जो रिफ्रैक्शन होगा लाइट का वो ज्यादा होगा, एब्जॉर्ब जो होगा वो लाइट ज्यादा होगा, और जो पास आउट होंगे वो लाइट कम होंगे. तो इससे हम लोग रीड करते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी. तो ये तो है इंस्ट्रूमेंटेशन की क्या है, मतलब बियर्ड्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ, ये आप लोग शायद एक्वाकल्चर में पढ़े होंगे या जो भी. तो हमारे कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखिए कि कैसे ये जो लॉग फेज कौन सा हो गया, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फेज व्हेन बैक्टीरिया डबल्स देमसेल्व्स. दिस इज द लैग फेज, यानी आपने जितना बैक्टीरिया इनोकुलम दिया, बट उसका जो डबल्स है, यू आर नॉट रिकवरिंग द डबल नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दैट बैक्टीरिया, बट यू कैन सी
यहाँ पे आप ऑप्टिकल डेंसिटी भी यदि हम स्टडी करें, यदि ऑप्टिकल डेंसिटी यहाँ पे सपोज 0.25 है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फेज में क्या होगा 0.50, तभी हम मान सकते हैं कि लॉग फेज में है। समझ में आया? यदि 0.25 ये लॉग फेज में है तो यहाँ पे कितना होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी कितना होनी चाहिए? तो सिंपली इट विल बी हाफ ऑफ द 0.25, 0.0125 होगा ना। तो हम लोग इस तरीके से लैग फेज या लॉग फेज एस्टिमेट करते हैं आफ्टर द एस्टिमेशन इन द स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, आप लोग को आ सकता है कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व जो है वो क्या है, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। सो एक्सप्लेन द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, सो यू हैव टू एक्सप्लेन लैग फेज, लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज, स्टेशनरी फेज एंड डिक्लाइन और डेथ फेज। ठीक है, so simply you just draw a neat diagram. You can write it here that this is the log numbers of bacteria, log of numbers of bacteria, and this is the time in hours or minutes. So simply you see the यहाँ पे क्या होगा कि नंबर ऑफ टाइम जो होगा, जितने नंबर ऑफ टाइम में बैक्टीरिया डबल कर रहा है, हम लोग इससे एस्टिमेट करते हैं आफ्टर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ठीक है, कि ये कितने टाइम में ये डबल्स हो रहा है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ये हम एस्टिमेट करते हैं कि किस कैसे कैसे, मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ टाइम यू जस्ट कैलकुलेटिंग हाउ मच ऑप्टिकल डेंसिटी कमिंग एट द डिस्प्ले। ठीक है, या हम लोग यदि प्लेट काउंट मेथड से करें तो प्लेट काउंट मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द बैक्टीरियल ग्रोथ? हम लोगों ने भी देखा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बैक्टीरियल ग्रोथ पे डिपेंडेंट होते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हम कितना सप्लाई कर रहे हैं। यदि थोड़ा होगा तो जो ग्रोथ कर्व होगा, जो लॉग फेज होगा, एक्सपोनेंशियल फेज होगा, वो भी शॉर्ट होगा। अल्टीमेटली थ्रू आउट द, मतलब जितने भी आपके पैरामीटर्स हैं वो क्या होंगे, शॉर्ट होंगे, चाहे वो लैग हो, लॉग हो, या फिर एक्सपोनेंशियल स्टेशनरी हो या डिक्लाइन, क्योंकि आपका जो न्यूट्रिएंट्स है वो बहुत जल्दी फिनिश कर जा रहा है। देन अगेन अनदर फैक्टर इज टेम्परेचर। टेम्परेचर कहने का मतलब ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑन द अर्थ, they have a specific temperature on which they can grow. Likewise, bacterium, they grow at optimum temperature. So different kinds of bacteriums are there. They may be thermophilic, means they require a wide range of temperature for their growth. So thermophilic means, thermo means heat और philic means requires, मतलब loving, मतलब heat loving bacteria. So they require more than 45, above than 45 degree to 90 degree. ठीक है, तो इसको हम लोग थर्मोफिलस बैक्टीरिया बोलते हैं। थर्मोट्रॉप्स, दोज हु कैन सस्टेन बट नॉट ग्रो वेल, यानी उस टेम्परेचर को सस्टेन तो कर सकते हैं एक लेवल पे जाकर के, हम लोग देखेंगे कैसे इसका डिवीजन है। तो थर्मोफिलिक, थर्मोट्रॉप्स या मेजोट्रॉप्स। मेजोट्रॉप्स यानी कहने का मतलब है, मेजो कहने का मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर, जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर जितना 37 होता है, तो मेजोट्रॉफिक बैक्टीरिया। देन साइक्रोफिलिक मींस कोल्ड लविंग बैक्टीरिया, दोज बैक्टीरियम हु ग्रोस इन द कोल्ड टेम्परेचर। ठीक है, पीएच, दे रिक्वायर optimum pH for their growth. And apart from these physical parameters and chemical parameters, also there are certain environmental factors that are responsible for a bacterium growth. अब हम लोग देखते हैं कि what are the classification based upon the nutrient requirements. So basically we use two terms here, auxotrophs and prototrophs. So basically these auxotrophs, they can live on simple compounds like nitrite or nitrite. This is a nitrate, NO3, Night. then glucose, and they require these nitrate or glucose for synthesis of all essential amino acids or vitamins. ठीक है, प्रोटोट्रॉप्स किसको बोलते हैं? They require complex compounds like vitamins, amino acid, fastidious, means they require special kind of nutrients for their growth and proliferation.
Okay, so most of the pathogens, they having a special criteria they on which they grow. ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स। तो कौन कौन से होते हैं? मेजोफाइल्स, द बैक्टीरिया विच आर एबल टू ग्रो एट 20 to 40 डिग्री सेल्सियस। आप देखिए कि जो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया दे ग्रो on these mesophiles, on the this 20 to 40 degree Celsius temperature are referred as mesophiles, and most of the human pathogens fall in these parameters. ठीक है, साइक्रोफाइल्स, organism which can grow best at or less than 10 degree Celsius. ठीक है, तो इसको हम लोग साइक्रोफाइल्स बोलते हैं। दे आर कैपेबल ऑफ ग्रोथ इन फार्मास्यूटिकल एंड फूड्स स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर। यानी हम लोग रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ना, बहुत सारी चीजें हम लोग रखते हैं रेफ्रिजरेटर में, तो क्या वहां बैक्टीरिया ग्रो नहीं होंगे? होंगे, बट दे विल नॉट अ ह्यूमन पैथोजेंस, बट बैक्टीरिया विल ग्रो। ठीक है, इवन दो देयर आर सर्टेन मेजोट्रोप्स मे बी देयर that can tolerate that temperature, that cannot grow well, but that can tolerate that refrigerating temperature. Okay, and once they get a suitable environment, they proliferate. इसीलिए हम लोग जितनी भी सब्जियां या फल लाते हैं हम लोग रेफ्रिजरेशन में रखते हैं, तो उसका जो सेल्फ लाइफ होता है किसी भी चीज का वो एक्सटेंड कर जाता है। लेकिन क्या सभी चीजों को हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं? नहीं सर। नहीं। नोट सर। ऐसे 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 कौन सी चीजें हैं जिनको हम रेफ्रिजरेटर में रखने से अवॉइड करना चाहिए? Those materials which are susceptible to fungal outbreak. ठीक है, जो फंगल आउटब्रेक, जहां पे अब यदि रेफ्रिजरेटिंग टेम्परेचर पे रख रहे हो तो वहां पे मॉइस्चर इन्वायरमेंट होगा, और जब मॉइस्ट इन्वायरमेंट होगा तो मोल्ड ग्रोथ वहां पे हो सकता है। ठीक है, देन तो ये सब कुछ एप्लीकेबिलिटी है जो रेफ्रिजरेशन है। तो हमें पता जरूर होना चाहिए कि डे टू डे वर्क में, चाहे हम अपने घर में ही क्यों नहीं करें, हमें पता होना चाहिए कौन सी चीजों को हम रेफ्रिजरेट करना है, किनका सेल्फ लाइफ एक्सटेंड कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको रेफ्रिजरेशन करने के बाद उनका सेल्फ लाइफ जो है वो डिक्रीज कर जाता है। तो लाइकवाइज थर्मोफाइल्स, दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच ग्रो बेस्ट एट मोर देन 60 डिग्री सेल्सियस। तो बिलो दिस, अब क्या होता है, ये तो आपने देख लिया मेजोफाइल्स 20 to 40, तो क्या 40 से 60 के बीच में जो ग्रो करेगा, क्या वो कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे, या कोई ग्रो ही नहीं करता है? बट दे आर रेफर्ड एज थर्मोट्रॉप्स। ओके, थर्मोट्रॉप्स कहने का क्या मतलब है कि वो दे आर टेम्परेचर द हीट टॉलरेंट स्पीसीज, यानी एक मैक्सिमम टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, बट आफ्टर दैट दे lose themselves if a temperature decrease, if temperature is increases further or decreased. क्लियर? तो उनका भी है। तो इसके बीच में जो थर्मोफाइल्स और मेजोफाइल्स के बीच में जो लाई करेगा वो थर्मोट्रॉप होगा। जो मेजोफाइल्स और साइक्रोफाइल्स के बीच में लाई करेगा वो क्या होगा? मेजोट्रॉप्स होंगे। ठीक है, और मेजोट्रॉप्स और साइक्रोफाइल्स के बीच में जो लाई करेंगे वो साइकोट्रॉप्स होंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग को तीन चीजें जाननी चाहिए, मेजोफाइल्स, साइक्रोफाइल्स। हालांकि आप डिफरेंट बुक्स में जाओगे तो वहां पे अलग अलग टेम्परेचर आप वेरिएशंस देख सकते हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो बेसिकली दीज आर द रफ क्लासिफिकेशन दैट ऑथर जनरली डू अकॉर्डिंग टू देयर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है सर, मेजोट्रॉप्स किसको बोल? मेजोट्रॉप्स क्या होगा? मेजोट्रॉप्स लाइज, देखो सिंपल, मेजोट्रॉप्स जो होंगे वो क्या होगा कि वो बॉडी टेम्परेचर को टॉलरेट करेगा, मतलब बॉडी टेम्परेचर जितना होता है उस टेम्परेचर पे लाई करेंगे, बट
जैसे ही कोल्ड टेम्परेचर जहां पर कोल्ड टेम्परेचर स्टार्ट होगा, ठीक है, जिसको साइक्रोट्रॉप्स बोलते हैं, वहां पे वो डिमिनिश होना शुरू हो जाता है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है उसका पॉपुलेशन, ठीक है। सो मेजोट्रॉप्स लाइज बिटवीन द मेजोफाइल्स एंड साइक्रोट्रॉप्स। साइक्रोट्रॉप्स कहां? साइक्रोफाइल्स, बिटवीन द साइक्रोफाइल्स एंड द मेजोट्रॉप्स इज अ साइक्रोट्रॉप्स। तो बेसिकली 3 क्लासिफिकेशन याद रखो। साइक्रोफाइल्स देखो -10 to 20, ठीक है। मेजोफाइल्स बिटवीन 15 to 45, क्लियर। देन हियर यू सी इन बिटवीन दीज, आप ये फेज देख रहे हो, तो इसको हम लोग क्या कन्वर्ट कर सकते हैं? ये मेजोट्रॉप्स होंगे, ठीक है, ये थर्मोट्रॉप्स होंगे, ठीक है। तो थर्मोफाइल्स, हाइपर थर्मोफाइल्स, there are certain species which can tolerate a wide range of temperature. So this is a सर साइक्रोट्रॉप्स किसके बीच में लाइक करती है? साइक्रोट्रॉप्स जो होंगे वो बेसिकली साइक्रोट्रॉप्स और मेजोट्रॉप्स के बीच में लाई करेगा। सर ये मेजोट्रॉप्स किसके बीच में होगा फिर? ये तो मेजोफाइल्स और ये साइक्रोफाइल्स के बीच में था। देखो सिंपली देखो, मैंने पहले ही बताया ये रफ क्लासिफिकेशन है, बट जानना क्या है, साइक्रोफिल्स मतलब कोल्ड लविंग, यानी कि वो कोल्ड टेम्परेचर पे ही ग्रो करेंगे, ठीक है। तो -10 हो या 5 हो, यदि हम देखते हैं कि कोई, सपोज रफली हम देखते हैं कि कोई बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है किस टेम्परेचर पे, तो जनरली हम -10 से लेकर के, यदि हम -10 से 10 तक देखते हैं तो साइक्रोफिल फाइल हम लोग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन सपोज कोई बैक्टीरिया इस रेंज में ग्रो करता है, जैसे 5 से लेकर के और वो 20 तक ग्रो करता है, तो इसको क्या बोलोगे तुम? बेसिकली दीज आर साइक्रोट्रॉप्स, क्योंकि जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है वो 4 डिग्री होता है, तो फ्रीजिंग टेम्परेचर से अप वो सरवाइव कर रहा है। बट जो मेजोट्रॉफिक लाइन है, जो 20 हम लोग बोलते हैं, 20 में हम लोग को ठंड लगना शुरू हो जाता है। यदि 20 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो वहां पे, अभी बहुत लोगों को बारिश हो रही है ना बहुत सारे जगहों पे, जी तो सर, बहुत सारे लोग चादर का यूज कर रहे हो, isn't it? बिल्कुल सर। Yes, sir. तो होता क्या है कि ये जो लाइनिंग होती है आपकी, अभी टेम्परेचर कितनी होगी? लगभग 18 से 20 के आसपास, ठीक है, 18 से 22 के आसपास आप रख लो, ये टेम्परेचर होगा। तो ये जो टेम्परेचर होता है बेसिकली, तो ये टेम्परेचर के बीच में मेजोट्रोप्स ग्रो करते हैं। लेकिन फर्दर यदि इंक्रीज हो गया 25 से बियॉन्ड, यानी 25 से 35 के आसपास, तो फिर मेजोफाइल्स होगा, क्योंकि ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है जब हमारा बॉडी इजीली सर्वाइव कर सकता है। यानी 37 के ऊपर बढ़े तो भी हम क्या होता है, स्वेट करने लगते हैं और वो एक्सीड होने लगता है, ठीक है, क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर ही 37, ठीक है। तो ये ठीक इसी तरीके से, सो जी। बेसिकली ये रफ क्लासिफिकेशन है। सो साइक्रोफाइल्स, साइक्रोट्रॉप्स, मेजोफाइल्स, साइक्रोफाइल्स, साइक्रोट्रॉप्स, देन मेजोफाइल्स, मेजोट्रॉप्स, थर्मोफाइल्स, थर्मोट्रॉप्स, देन हाइपर थर्मोफाइल्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये बढ़ते चले जाते हैं। सो क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन पीएच रिक्वायरमेंट। तो दीज आर द एसिडोफाइल्स, ठीक है। एसिडोफाइल्स मींस those bacteria which can grow well below the pH of 5, ठीक है। यानी 5, यदि किसी भी मीडिया का पीएच यदि 5 से बिलो है और उसमें जो भी बैक्टीरियम ग्रो करते हैं वो एसिडोफाइल्स होते हैं। बेसिकली हम लोग देख लें, कोई भी, चाहे वो नींबू हो, खट्टा कोई भी फ्रूट्स देख लो, जो दीज आर सिट्रस फ्रूट्स, इजंट इट, तो क्या वो स्पॉइल नहीं होते हैं? These citrus fruits also have to undergo under the spoilage process after some time, है या नहीं है? है। यस। जनरली जो पीएच होता है इनका कितना होता है? बिलो 5 होता है। तो तुम सोचो कि जैसे मोस्ट ऑफ द ह्यूमन पैथोजेंस दे रिसाइड विद इन दीज मेजोफिलिक बॉडीज, विद इन दीज मेजोट्रॉप्स, ठीक उसी तरीके से जो एसिडोफाइल्स बैक्टीरिया होते हैं वो किस में होंगे? ये सिट्रस फ्रूट्स में होंगे, because this is a optimum environment, this is a suitable environment for their survival and growth, ठीक है। जैसे ही वो सिट्रस, फिर क्या होता है, जब तक मीडिया है, जब आप फल तोड़ लेते हो,
वो क्या होता है, स्लोली स्लोली जब उनकी न्यूट्रिएंट्स डिप्राइव्ड ऑफ हो गए